Good morning, children. We have discussed few questions of chapter perimeter and area. We have discussed how we can find out the perimeter and area of square and rectangle. So in the first exercise, we have discussed only for the area of perimeter and area of square and rectangle. And then in second exercise, we have learned how we can find out the area of parallelogram and rectangle. So these four shapes we have discussed: square, rectangle, parallelogram and triangle. Okay, these four we have discussed. Now the next we are going to discuss about circle. Now the third exercise which we will be starting today, that is related to perimeter and area of circle. Before starting this exercise, first of all I would like to tell you the basics of circle. Circle के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी आप लोगों को. How we can draw a circle? The first thing, we can draw a circle by using compass. In compass, we keep the metallic point in the center. This is center. Okay. And then we can rotate the pencil and we can make a circle of any radius. Like I can make a small circle with radius 1 centimeter. More than that, I can take a radius of 2 centimeter and I can make some bigger circle with radius 3 centimeters, some more bigger circle. So as soon as I will increase the radius, this is radius. So as soon as I will increase the radius, the size of the circle will increase, its area will also increase and its perimeter will also increase. The another name for perimeter of circle is, like for square we say perimeter of square, perimeter of rectangle. But for perimeter of circle, we have one more name, that is circumference. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? Circumference. So circumference is nothing, it's only perimeter of circle. Okay. Now this is radius. Radius we denote by r. Now double of radius. Radius को अगर मैं double कर दूं, 2 times of radius. This is center O. 2 times of radius is diameter and we denote it by d. ठीक है, तो diameter is equal to double of radius, or diameter is a line segment which is passing through center and it is intersecting the circle at 2 points. So this was the basics of circle which we should know. Perimeter of circle भी मैंने आपको समझा दिया है. अब इसमें एक नई चीज आपके सर्कल के पूरे टॉपिक में एक नई चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, पाई. ये क्या पढ़ रहे हैं आप? पाई. इस पाई को समझने से पहले now I am giving you one activity which you all have to perform. Now what is the activity? Please see to it. What you have to do, like activity you all have to perform in notebook. Activity क्या है बेटा? You can choose bangles of different size or you can take any circular shape. आप एक कैप से सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक मम्मी के बैंगल से सर्कल ड्रॉ कर लो, आप एक छोटी सी कटोरी से सर्कल ड्रॉ कर लो. आपको अलग अलग सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है. यू कैन ड्रॉ 3 or 4 डिफरेंट साइज ऑफ सर्कल्स, ठीक है. एक कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल का थोड़ा और छोटा सर्कल होता है. सो वी कैन ड्रॉ 4-5 डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्कल. ये एक्टिविटी आप लोगों को परफॉर्म करनी है. विदाउट परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी द कॉन्सेप्ट विल नॉट बी क्लियर फॉर सर्कल. ठीक है, सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, पाई क्या है, इन सबको समझने के लिए ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आपने 3, 4, 5 यू कैन ड्रॉ 5 डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्कल. ठीक है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी? फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई. वी कॉल इट एज पाई. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई को? 2 ऐसे बनाते हैं, देन 2 वर्टिकल लाइन्स एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर इट. फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई. एंड व्हाट वी हैव डन? वी हैव ड्रॉन 5 डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्कल बाय टेकिंग डिफरेंट शेप्स. बॉटल कैप और लाइक any small bowl, small plate, bangle. Okay, any 4-5 shapes you can take from your home, whatever is available. Then you have to take one thread. थ्रेड यू मस्ट बी हैविंग एट होम. ठीक है, अलग अलग कलर्स के थ्रेड ले लीजिए. ठीक है, थ्रेड सपोजिंगली आपने इस पॉइंट पे एक थ्रेड रखा, ठीक है, और इसके ऊपर आप थ्रेड को पूरा रोटेट करके देखो. थ्रेड लो,
इस थ्रेड को पूरा इस पे रख के देखिए आप, ठीक है। जितने जैसे यहां से आपने थ्रेड को लेना शुरू किया है और यहीं पे खत्म करना है, तो आपको उसको कट कर लेना है। ओके, क्या कर रहे हैं आप लोग, थ्रेड को स्टार्ट किया एक पॉइंट से, बस ऐसे ऊपर रख के देखिए, ठीक है। रख के देखने के बाद जहां तक आ रहा है उसको कट कर लीजिए। ओके, देन यू कैन पेस्ट द थ्रेड हियर एंड देन यू हैव टू राइट द लेंथ ऑफ थ्रेड। थ्रेड की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ऐसे आपको दूसरा एक और थ्रेड लेना है, इसके ऊपर करना है, उसको नापना है, ठीक है। आप चाहो तो इस सर्कल के ऊपर ही इस थ्रेड को चिपका सकते हो। ओके, पहले इसको नाप लेंगे, लेकिन हम लोग लेंथ ऑफ थ्रेड यू कैन मेजर इट बाय यूजिंग योर स्केल, इंची टेप, एनीथिंग, ठीक है। इसको पहले आपने पूरा गोल घुमाया, कट किया, मेजर किया, देन यू कैन पेस्ट इट। ओके, तो सबका आपका अलग अलग लेंथ ऑफ टेप आ जाएगा, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, जो लेंथ ऑफ थ्रेड है आपकी, वो आपकी क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी। लेंथ ऑफ थ्रेड इज बेसिकली योर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोल लें या फिर हम पेरीमीटर बोल लें। तो ये पूरा जो आपका लेंथ ऑफ थ्रेड आएगा, दैट विल बी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और आई कैन से सरकमफ्रेंस। देन यू हैव टू डिवाइड दैट सरकमफ्रेंस बाय डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। अब रेडियस कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आप उस एक स्केल को रख के देखिएगा, यहां से जैसे रखना शुरू करिएगा आप, अगर जैसे स्केल आप लोग यहाँ रखना शुरू करते हैं, यू ऑल कैन सी, जैसे ये स्केल में रखना शुरू करूंगी, जो भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी दैट विल बी, वी कैन डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड बाय डायमीटर, ठीक है। अगला लेंथ ऑफ थ्रेड के बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा, दैट विल बी सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। आप सबको यहाँ डिवाइड, सरकमफ्रेंस क्या होगा, टोटल लेंथ, और इसको डिवाइड करना है डायमीटर से। डायमीटर कैसे मिलेगा, इसका जो मैक्सिमम जो भी आपको लेंथ मिल रही होगी, ठीक है, दैट विल बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। आप यहाँ पे एक कॉलम और बना सकते हैं लेंथ से पहले डायमीटर का। फर्स्ट कॉलम यू कैन मेक ऑफ डायमीटर। डायमीटर यू कैन मेजर बाय स्केल, एक सेंटर में रख के देखिए जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही होगी, दैट विल बी डायमीटर। ओके, देन लेंथ ऑफ थ्रेड, देन सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है। यू कैन डू द कैलकुलेशन बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, देन इसका जो भी आपका आंसर आएगा, यू कैन ऑब्जर्व दैट वॉट एवर आंसर यू विल गेट, circumference upon diameter will be approximate a कांस्टेंट वैल्यू। सारी वैल्यूज लगभग इसके करीब आएंगी, इसी के आसपास आएंगी। 3.14 से कुछ ज्यादा भी हो सकती हैं, कुछ 3.14 से कम भी हो सकती हैं, बट इसी के अराउंड आएंगी, ठीक है। तो जब भी हमने सरकमफ्रेंस को, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल को डायामीटर से डिवाइड किया है, तो हमें हर बार एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है। इस फिक्स्ड वैल्यू को हम लोगों ने क्या नाम रखा है, पाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। हाउ वी कैन डिफाइन पाई, पाई इज अ रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। पाई क्या है, वो रेशियो है, किस किस का रेशियो है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। तो इस तरीके से हम लोग पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, देन आई विल गिव यू टू फॉर्मूलाज ऑफ दिस एक्सरसाइज। वन इज perimeter of circle, that is equal to 2 pi r। perimeter of circle कितना होता है, 2 pi r। then area of circle is equal to pi r square। यहाँ पे r की पावर कितनी है, 2 है, मीन्स r रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। And what is the value of pi? Pi is equal to 22/7 और 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी लेनी है, वो डिपेंड, दोनों की वैल्यू सेम ही है। 22/7 को डिवाइड करोगे तो 3.14 ही आएगा। या आप ये बोल सकते हो, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगी तो 22/7 ही आएगा। अब कौन सा पाई हम चूज करेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया हो तो बहुत इजीली आप जो क्वेश्चन में अगर ये बोला है तो यही लेंगे, ये बोला है तो यही लेंगे। बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, यू पीपल आर फ्री टू चूज द पाई। हाउ वी विल डिसाइड, इफ द रेडियस, जो भी आपका रेडियस है वो एक ऐसा नंबर है जो कि 7 की टेबल में आता हो, लाइक 7, 14, 21, 28, देन वी विल चूज दिस वैल्यू ऑफ पाई।
उससे क्या फायदा होगा, जिसका डिनोमिनेटर वाला 7 है वो रेडियस से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम बेसिकली यही टेक्निक यूज करते हैं पाई को चूज करने की, कि हम अगर रेडियस 7 का कोई मल्टीपल है देन वी चूज दिस, अदरवाइज वी कैन चूज 3.14. So this was the basic of circle. Circle is drawn with compass with center O, and from center to the circle the fixed distance is called radius. Double of radius is diameter. Then in circumference of circle or in area of circle we are having one new constant value that we call as pi. So we have to do one activity to find out the value of pi. We have taken 5 different sizes of circle. Okay, then diameter we have find out the maximum distance from the center, maximum जो भी distance आ रही होगी, because the longest chord of the circle is diameter. Then length of thread, we have to take one thread, we have to measure it, cut it, then write down the total length, and then you can paste it on the circle also. Then whatever length of thread is there, whatever diameter is there, we have to divide. Every time we will find out that the answer is coming near about to 3.14. So you all can do this activity on today's date. The questions of the exercise we will discuss in our next class. Thank you everyone.